Good morning, children. Today is our continuation lesson of chapter 6. So, let's begin our day with a positive note. One of the best gifts you can give someone is thanking them for being part of your life. So, children, you should thank your parents, your elders, your younger ones, your classmates, your friends, and everyone for being there and for guiding you, for helping you to move towards your goal. Okay? So let's begin our lesson. In our previous lesson, we have learnt that there were two boys named Amrit and Isab who were wearing identical shirts on the day of the Holi festival. Okay? And a group of village boys gathered under a neem tree, and there they came walking arm in arm and joined those boys. Okay, they were wearing identical shirts, and these two boys were best friends. They were in the same class at the same school, and they lived in houses facing each other. They were similar in every respect except for that Isab had only his father living, okay, whereas Amrit had both parents living and he had 3 brothers. The two boys came and sat on the pavement. Then one of the boys asked, "Dad, have you changed your identities?" Another boy got a mischievous idea and said that, "Why don't you two have a wrestling match so that we can see that whether you are identical in strength also, whether you are equal in strength also." Okay. So the first boy thought that yes, this was a good idea, and then all of them were cheering for them and said that okay, you two fight, it's only for fun. But when Isab looked at Amrit was not keen to fight and said, no, I don't want to fight because my mother will beat me if she sees my torn shirt or my dirty shirt. Okay, because before he left home, his mother had warned him that don't tear your shirts or make your shirt dirty, because if you tear or make your shirt dirty, then I'll beat you. Okay, so let's continue with our today's lesson. It's true that Amrit had bullied his parents. When he heard that Isab was getting a new shirt, he had insisted that he should get one exactly like Isab's or he would not go to school. His mother had tried to reason with him. "Son, Isab has to work on the farm. His clothes are worn out. Yours are still as good as new." ये सच्चाई थी कि अमृत ने बहुत ज़िद की थी उस शर्ट के लिए, और जब उसने सुना कि इसाब नई शर्ट ले रहा है होली में, तो उसने भी अपनी मम्मी से इस शर्ट के लिए ज़िद की और कहा कि मुझे भी इसाब की तरह ही, एकदम इसाब की तरह ही वैसा ही शर्ट चाहिए, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसकी माँ ने उसको कन्विंस करने की कोशिश की। उससे कहा कि देखो बेटा, इसाब को अपने पापा की मदद करनी पड़ती है, फार्म पे काम करना पड़ता है, और उसके कपड़े जो हैं वो पुराने हो गए हैं, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो अभी तक नए जैसे हैं, ठीक है। Who says so? Amrit had cried, widening a tear in his shirt with his finger. फिर अमृत रोने लगा और कहने लगा कि ये किसने कहा है और कौन कहता है ऐसा। और उसके जो शर्ट में छोटा सा एक छेद था, उसने उसको उंगली डाल के और बड़ा कर लिया, माने उसको उस शर्ट को फाड़ लिया, ठीक है। His mother tried another gambit. Isab was given a thrashing by his father before he was given his new clothes. Would you also like a thrashing? उसकी माँ ने दूसरा तरीका आजमाया, ठीक है। उसने कहा कि इसाब को उसके पापा ने बहुत मारा, ठीक है,
शर्ट दिलाने से पहले, क्या तुम्हें भी पिटना है, क्या तुम्हें भी मैं पीट दूँ? तो अमृत रिफ्यूज टू बी पुट ऑफ. ओके, ही सेड डिफाइंटली, टाई मी अप, बीट मी, बट यू हैव टू गिव मी अ शर्ट लाइक ईसाब्स. अमृत लेकिन हारने वाला नहीं था. उसने बगावत करते हुए कहा. उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी और कहा कि ठीक है, मुझे बांध दो, मुझे मार डालो, लेकिन मुझे ईसाब की तरह ही शर्ट चाहिए. ऑल राइट, रिप्लाइड हिज मदर, वॉशिंग हर हैंड्स ऑफ हिम, गो एंड आस्क योर फादर. उसने कहा, अब उसकी माँ थक चुकी थी. उसने कहा ठीक है, जाओ अपने पापा से जाके पूछ लो. बच्चों, ऐसा होता है ना, जब हम अपने पेरेंट्स से किसी बात के लिए ज़िद करते हैं, जब बच्चे अपने मम्मी से किसी बात के लिए ज़िद करते हैं और मम्मी उस बच्चे से हार जाती है, तो मम्मी कहती है कि ठीक है, जाओ अपने पापा के पास जाओ और उन्हें परेशान करो, उन्हीं से पूछो. ठीक है, तो ऐसा ही इस अमृत की माँ ने भी किया. अमृत न्यू डैट इफ़ हिज मदर हैड सेड नो, हिज फादर वॉज नॉट लाइकली टू एग्री. But he was not one to give up. He refused to go to school, refused to eat, and refused to come home at night. Finally, his mother gave in and persuaded his father to buy him new clothes. She brought Amrit from Isab's father's cowshed where he had been hiding. अब अमृत जानता था कि अगर उसकी माँ ने नहीं बोला है तो उसके पापा भी नहीं मानेंगे, लेकिन वो हारने वाला नहीं था. उसने स्कूल जाने से मना कर दिया, खाना खाने से मना कर दिया और रात में घर भी नहीं आता था. ठीक है, अब उसकी माँ हार गई. उसकी माँ ने हार मान लिया और उसने ये अमृत के पापा को समझाया कि उसे नई शर्ट ला दे. ठीक है, और फिर अमृत को ईसाब के पापा के काऊ शेड से ले आई जहाँ पे वो छुप गया था. ठीक है, ये अमृत जाके ईसाब के पापा के काऊ शेड में जाके छुप गया था. काऊ शेड यानी जहाँ पे गायें रहती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जाके छुप गया था और रात में घर नहीं आया था. तो अमृत की माँ उसे घर ले आई. हैविंग लेफ्ट होम स्मार्टली ड्रेस्ड, अमृत वॉज लोथ टू डू एनीथिंग दैट वुड स्पॉइल हिज क्लोथ्स. इन एनी केस ही वॉज मोस्ट रिलक्टेंट टू रेसल विथ ईसाब. अब जो अमृत अपने घर से निकला, बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के स्मार्टली ड्रेस्ड होके निकला था, तो अमृत अब नहीं चाहता था कि उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाए, क्योंकि उस कपड़े को पाने के लिए, उस शर्ट को पाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले थे. ठीक है, यानी उसने बहुत ही मिन्नतें की थी, है ना. और इसीलिए वो ईसाब के साथ रेसल नहीं करना चाहता था, कुश्ती नहीं लड़ना चाहता था. जस्ट देन वन ऑफ द राउडीज ऑफ द गैंग पुट हिज आर्म्स अराउंड अमृत's neck and said, "Come on, let's have a wrestling match." He dragged Amrit onto the open ground. तभी एक जो शैतान बच्चा था उस गैंग का, उन बच्चों के गैंग का, वो आया. उसने अमृत के गर्दन पे हाथ डाली और कहा कि उसने अमृत को अपने अमृत का गर्दन पकड़ा और कहा कि चलो मेरे साथ लड़ो. और फिर वह अमृत को ओपन फील्ड में ले आया. अमृत ट्राइड टू रिगल आउट ऑफ द बॉयज़ ग्रास्प एंड सेड, लुक कालिया, आई डू नॉट वॉन्ट टू रेसल, लीव मी अलोन. अमृत उस बच्चे के चुंगल से निकलना चाहता था और उसने कहा कि देखो कालिया, उस बच्चे का नाम कालिया था. उसने कहा, देखो कालिया, मैं तुमसे कुश्ती नहीं लड़ना चाहता, मुझे छोड़ दो. कालिया रिफ्यूज टू लेट गो एंड थ्रू अमृत ऑन द ग्राउंड. कालिया ने बात नहीं मानी और उसने अमृत को नहीं छोड़ा और उसने अमृत को लाके ग्राउंड पे पटक दिया. द बॉय शाउटेड इन ग्ली. जो दूसरे बच्चे थे वो खुशी के मारे उछल के चिल्लाने लगे, अमृत हैज़ लॉस्ट, कालिया हैज़ वन, कालिया हैज़ वन, हुर्रा हुर्रा करके चिल्लाने लगे. ठीक है, तो वो लोग चिल्लाने लगे कि अमृत हार गया, कालिया जीत गया. और फिर उकसाने लगे, यानी कि वो लोग उकसा रहे थे. ठीक है, ताकि वो लोग कुश्ती लड़े. ईसाब लॉस्ट हिज टेम्पर. ही टुक कालिया बाय द हैंड एंड सेड, कम ऑन, आई विल फाइट यू. अब ईसाब को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि अमृत उसका बेस्ट फ्रेंड था और अमृत को कालिया ने पटक दिया था. उसने कालिया का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो आओ मेरे साथ लड़ो. कालिया हेसिटेटेड, बट द अदर बॉयज एग्ड हिम ऑन. द टू बॉयज ग्रैपल्ड विथ ईच अदर. कालिया Isab tripped Kalia and sent him sprawling on the ground. Kalia began to howl.
अब कालिया लड़ना नहीं चाहता था, ठीक है। कालिया तो इसाब और अमृत को उकसा रहा था लड़ने के लिए। तो जैसे ही इसाब को गुस्सा आया, कालिया समझ गया कि वो इसाब से नहीं जीत पाएगा। तो लेकिन दूसरे बच्चे जो थे वो लोग तो, उन लोगों को तो बस लड़ाई देखनी थी, चाहे कोई भी लड़े, उन लोगों को तो बस मज़ा लूटना था। तो दोनों बच्चे फिर ग्राउंड में आ गए, कालिया और इसाब, और दोनों ने एक दूसरे को जकड़ लिया। और फिर इसाब ने कालिया को पैर से, कुश्ती में होता है ना, उसको पैर से मारा और उसको धक्का दे दिया, और फिर वो जाके सीधे ग्राउंड में गिर गया, यानी इसाब ने कालिया को पटक दिया। कालिया began to howl. कालिया दर्द के मारे चिल्ला उठा। The boys realized that what had started as a joke had become a serious affair. Scared that Kalia's parents might beat them, they scattered and ran away in different directions. अब जो बच्चे थे उनको समझ में आ गया कि अरे ये तो मजाक से शुरू हुआ था और अब बहुत ही गंभीर, उस वाक्य ने बहुत ही गंभीरता धारण कर लिया, ठीक है, यानी बहुत ही गंभीर हो गया, ये स्थिति बहुत गंभीर हो गया, क्योंकि अब कालिया के जो पेरेंट्स हैं वो आके सबको मारेंगे, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि कालिया को चोट लग गई थी और कालिया के पेरेंट्स आके मारेंगे, और इसीलिए सब लोग तितर बितर हो गए वहाँ से, और फिर अलग अलग डायरेक्शंस में सब लोग दौड़ पड़े, ठीक है, डर के मारे। अमृत एंड इसाब ऑल्सो लेफ्ट द एरिना। अमृत और इसाब ने भी जो वो स्पॉट था जहाँ पे वो मैच हुआ था, रेसलिंग मैच हुआ था, वो स्पॉट छोड़ दिया। They had hardly gone a few steps when Amrit's eyes fell on Isab's shirt. Its pocket and a 6-inch strip were torn. They stopped dead in their tracks, overcome with fear. They examined the tears in the shirt. As if this was not enough, they heard Isab's father shouting from his house, "Where is Isab?" अब वो लोग थोड़ी ही दूर जा पाए थे कि अमृत की जो आंखें थी वो इसाब के शर्ट पे जाके टिक गई, ठीक है। उसका जो पॉकेट था, जहाँ पे पॉकेट होता है वहाँ से वो पॉकेट भी फट गया था, और वहाँ से जो पॉकेट का जो स्टिच होता है वो भी 6-inch स्ट्रिप वो फट गया था, ठीक है। अब दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही डर गए थे वो लोग। और फिर वो दोनों मिलके देखने लगे कि और भी कहीं तो नहीं फटा है शर्ट। अब इतना ही काफ़ी नहीं था, इसाब के पापा की आवाज़ सुनाई दी उन लोगों को। इसाब के पापा अपने घर से इसाब को बुला रहे थे कि कहाँ है इसाब। The boys' hearts stopped beating. They knew they were going to have it. As soon as Isab's father saw his torn shirt, he would skin him alive. He had borrowed money from the moneylender and spent a lot of time choosing the cloth and having it stitched. अब उनकी धड़कनें बंद हो गई थी, दोनों बच्चे कांपने लगे थे। दोनों बच्चों को पता था कि अब तो पिटाई पड़ने वाली है, बहुत ही धुलाई होने वाली है। और क्योंकि इसाब के पापा जैसे ही वो शर्ट देखेंगे, फटी हुई शर्ट देखेंगे, कि इसाब की चमड़ी उधेड़ देंगे, क्योंकि इसाब के पापा ने मनी लेंडर से उधार लेके पैसा उधार लेके उस शर्ट के लिए बहुत टाइम दिया था अपना, उस शर्ट के लिए कपड़ा चुना था और फिर उस कपड़े को सिलवाया था और इसाब को वो नई शर्ट दिलवाई थी। इसलिए उसके पापा ने बहुत मेहनत की थी उस शर्ट के पीछे। अगेन इसाब्स फादर शाउटेड, हु इज़ क्राइंग, वेयर इज़ इसाब। अब इसाब के पापा फिर से चिल्ला उठे कि कौन रो रहा है, इसाब कहाँ है, कौन चिल्ला रहा है, इसाब कहाँ है, ठीक है। सडनली अमृत हैड अ ब्रेन वेव. He dragged Isab to one side. "Come along with me," he said. As they entered the lane between the two houses, Amrit started unbuttoning his shirt. "Come on, take off your shirt. You wear mine," he ordered. तो अब अमृत को अचानक आइडिया आया
जब बहुत मुसीबत में पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से राह दिख ही जाती है ना। तो अमृत को भी ऐसे ही सडनली एक आइडिया आया। उसने ईसाब को घसीटते हुए एक साइड में ले गया और कहा कि मेरे साथ आओ। और फिर दो घरों के बीच जो रास्ता जाता है वहाँ पे वो लोग गए और उस लेन में गए, उस गली में गए और अमृत ने अपना शर्ट खोलना शुरू किया। अमृत ने शर्ट के बटन खोलने शुरू किए और कहा कि तुम भी अपनी शर्ट उतारो, तुम मेरी शर्ट पहन लो। व्हाट अबाउट यू, व्हाट विल यू वेयर, आस्क्ड ईसाब। ईसाब ने पूछा कि और तुम्हारा क्या, तुम क्या पहनोगे। आई विल वेयर योर शर्ट, रिप्लाइड अमृत, हरी अप बिफोर एनीवन सीज अस। अमृत ने कहा कि मैं तुम्हारी शर्ट पहन लूँगा, जल्दी करो इससे पहले कि कोई हमें देख ले। ईसाब began unbuttoning his shirt but could not follow what Amrit was getting at. Exchange shirts? How will that help? Your father will thrash you. ईसाब अपनी शर्ट उतार तो रहा था, वो बटन खोल तो रहा था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अमृत ये क्या करने वाला है। उसने कहा कि उसने अमृत से कहा कि हम लोग अपनी शर्ट बदल लें, लेकिन ये कैसे मतलब मुमकिन है, इससे क्या होगा, तुम्हारे पापा भी तो तुम्हें मारेंगे। ऑफ कोर्स ही विल थ्रैश मी बट आई हैव अ मदर हु विल प्रोटेक्ट मी, रिप्लाइड अमृत। अमृत ने कहा कि हाँ वो मुझे ज़रूर मारेंगे, वो मुझे मारेंगे, लेकिन फिर मेरी माँ है जो मुझे बचा लेगी। ईसाब हेसिटेटेड, जस्ट देन ही हर्ड समवन कफ क्लोज बाय। ईसाब बहुत मतलब वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अमृत को मार पड़े, ठीक है, या उसके घर में कोई किसी तरह का कोई ये हो, मतलब इश्यूज़ हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो। तो ईसाब थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, लेकिन तभी उसने किसी की खांसने की आवाज़ सुनी और फिर दोनों लड़कों ने जल्दी जल्दी शर्ट बदल लिया और वहाँ से उस गली से निकल गए और फिर अपने घरों की ओर चले गए। द टू बॉयज़ quickly exchanged shirts and came out of the lane and walked gingerly towards their home. Okay, जल्दी जल्दी वो अपने घरों की ओर चल पड़े। अमृत's heart was pounding with fear, but he was in luck. It was holy, and it was only natural that there should be some rough play. When she saw his torn shirt, his mother only frowned and forgave him. She took a needle and thread and mended the torn shirt. अमृत डर के मारे काँप रहा था जब वो घर पहुंचा, लेकिन वो बहुत लकी था, उस दिन होली था और ये मतलब लाजमी बात थी कि वो ये वाजिब था कि उस दिन कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि बच्चे बहुत ही शरारत करते हैं उस दिन, ठीक है, एक दूसरे को रंग लगाने के लिए एक दूसरे के साथ बहुत सारा मस्ती करते हैं, तो इसमें शर्ट फट ही सकता है। तो उसकी माँ ने जब वो फटी हुई शर्ट देखी तो उसकी माँ बहुत गुस्सा आई, लेकिन फिर उसकी माँ ने उसे माफ़ कर दिया और उसकी माँ ने सुई धागा लिया और जहाँ पे शर्ट फट गई थी उस शर्ट को सिल दिया। The boys got over their fear and set off again arm in arm to see the holy bonfire outside the village. अब जो दोनों ये थे बॉयज़ थे, वो लोग बहुत आश्वस्त हो गए कि अब चलो हो गया, अब तो मार नहीं पड़ी, बच गए, जान बच गई। और फिर से वो लोग कंधे में कंधा डाले, एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाले हुए और होली के बोनफायर यानी होलिका जलने वाली थी वो देखने के लिए विलेज के बाहर चले गए, ठीक है। A boy who noticed the exchange of shirts spoiled the fun by taunting them. So you have interchanged, हाँ। तो फिर एक जो लड़का था उसने वो एक्सचेंज ऑफ शर्ट्स वो शायद उसने देख लिया था, ठीक है, उन लोगों को शर्ट्स एक्सचेंज करते हुए शायद उसने देख लिया था। उसने टॉन्ट किया, उसने ताना मारा, ओ तो तुम लोगों ने शर्ट इंटरचेंज किया है, शर्ट एक्सचेंज किया है, अदला बदली की है, ठीक है। और फिर fearing that the boys had seen them exchange their shirts, Amrit and Isab tried to slink.
slink away. By then other boys also knew what had happened and set up a chant, अदल बदल. अब वो दोनों अमृत और ईसाब फिर से डरने लगे कि शायद उस लड़के ने उन्हें शर्ट एक्सचेंज करते हुए देख लिया है, और फिर वो लोग वहाँ से भागने लगे. लेकिन उस लड़के ने जिसने टॉन्ट किया था, जिसने उन्हें ताना मारा था, उसने दूसरे लड़कों को भी बता दिया, और फिर सब लोग एक मंत्र की तरह वो जप करने लगे, अदल बदल, और उन्हें चिढ़ाने लगे. ओके, सो टुडे टिल हियर, आई होप द लेसन इज क्लियर टू यू. In our next lesson we will do the remaining part of the story, and I will also send you the question answers in the form of PDF, and if possible I'll explain to you the answers. Okay, so have a great day full of productivity and good vibes. Okay, always stay positive, be optimistic, and move on steadily towards your goal. Okay, thank you.